Morning all of you. Today we start our new chapter, The Hero. About the chapter, Robert Bailey, a British teacher, hailed as a hero, and with his courage and presence of mind he saved the life of his 42 students in Japan on 17th March 2011 before their school was destroyed by the tsunami. बच्चों, यहाँ पर रॉबर्ट बैले नाम के एक ब्रिटिश टीचर के बारे में हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने 42 स्टूडेंट्स को बचाया था 17 मार्च 2011 को, जो सुनामी आई थी जिसमें उनका स्कूल क्या हो गया था, बिल्कुल नष्ट हो गया था. ओके, देन वी कंटिन्यू. Robert Bailey lived in a city of Ofanato with his Japanese wife Mia. He had arrived in Ofanato 4 years ago and not bothered by the town's risky location upon the shifting tectonic planet of the Pacific Ring of Fire. He had soon fallen in love with its natural beauty. It is not hard to see why. The normally scene spot is formed by soaring pine-clad mountain and the river estuary bordered on the glistening ocean 2 miles beyond. Sitting almost on top of seabed volcano, Ofanato had been shaken so often over the years that when the earth moved beneath them, the 40,000 souls who lived there barely raised an eyebrow. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी रॉबर्ट बैली हैं वो अफेनाटो जापान में एक जगह है, वहाँ पर अपनी जापानीज़ वाइफ के साथ, जिसका नाम मिया था, उसके साथ रहते थे. 4 साल से जो वहाँ रह रहे थे और वहाँ पर वो पहले से ही एक ऐसी जगह रुके हुए थे, मतलब उनका जो रहने का जो उनका टाउन था वो रिस्की लोकेशन पे था. उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. Barry made his way to the local high school each morning to teach English to a class of teenagers. He invariably made along to the stairs of aggressively wafting from dozens of loudspeakers and returned home to the sound of yesterday by the beatless, however, as he recalled that Friday afternoon there was no beatless song. अब देखिए बेटा, बैले में जो थे वो वहाँ पर रॉबर्ट बेले वो अपने मतलब बच्चों को पढ़ाते थे, इंग्लिश के टीचर थे. वो लोकल हाई स्कूल में कार्यरत थे और वो डेली वहाँ पर बच्चों को, टीनेजर्स को इंग्लिश पढ़ाते थे. और डेली वहाँ पे लाउड स्पीकर पर कहा जाता था कि वहाँ से दूर रहें. और जिस दिन की बात हो रही है, द फ्राइडे आफ्टरनून, ये फ्राइडे की दोपहरी थी और वहाँ पर किसी तरह का बीटलेस सॉन्ग नहीं थे. देयर वाज नो बीटलेस सॉन्ग. ठीक है. 11th March 2011 was Bailey's day off from work and the 27 years old teacher was not supposed to be at school on the day. However, he wanted to teach his high school students a bit of cricket, so he went to the school. He was explaining the game of cricket to them when he heard a strange noise. He first heard a violent cracking noise and then came the violent shaking. He later said, describing the moment when the earth struck on 11th March. देखिए बच्चों, 11 मार्च की बात है 2011 में. 27 ईयर्स ओल्ड जो हमारे टीचर हैं वो उस दिन, मतलब जो उनके साथ कार्यरत थे, वो उस दिन स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उन्हें उनकी जगह कैसे क्रिकेट के बारे में कुछ टीनेजर्स को क्या देनी थी, कुछ नॉलेज देनी थी, एक्सप्लेन करना था गेम के रिगार्डिंग. सो वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक स्ट्रेंज नॉइज़ सुनाई देती है जिससे वो उन्हें लगता है क्रैकिंग नॉइज़, वियर्ड, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें थी. और वो 11 मार्च को एक अर्थक्वेक की थी. आई assured the students outside on the baseball field so they wouldn't be hit by falling debris. Real call Allen. It was on higher ground than the school, which was located on the hill.
At 2:46 p.m. local time, the entire valley shook with a massive force. A moment later, the disparate tone of a town hall official boomed over the loudspeaker, putting fear into the heart of residents. A hug tsunami is upon us. Evacuate immediately. The officials were sparked mass panic. Without pausing to gather even their most precious belongings, with people run out their homes and offices and climbed up the hill as fast as their legs could carry them. Record show they had precisely 88 minutes to reach safety. For 2:44 p.m. the great wave come rolling in, destroying all in its path. देखिए बच्चों, जो वैली है उसे वहाँ पर वो जो स्कूल थी वो कहाँ पे थी, वो हिल पे लोकेटेड थी, मतलब किसी ऊंची पहाड़ी पर। उस समय टाइम चल रहा था 2:46 लोकल टाइम। एंटायर वैली में बहुत ज़्यादा ही मैसिव फोर्स सा महसूस हो रहा था और सभी मतलब मतलब जो आवाज़ें थी लाउड स्पीकर पर, एक आपने देखा होगा जैसे अभी हम लोग जिस पैंडमिक को फेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी कहा जाता है मास्क लगा के जाओ, वैसे ही जब सुनामी आने वाला था जापान में भी, दैट टाइम भी लाउड स्पीकर पे इस तरीके की काफ़ी सारी मूवमेंट्स हो रही थी और जो कि आपको एक डर से भर देती है। और यही सारी चीज़ें हमें मतलब यही सारी चीज़ें बहुत पैनिक थी, बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो सेफ्टीली जो लोग थे उन लोगों को यही कहा गया था कि वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुँचें और अपने आप को बचाएं। और जो 8 मिनट्स टू रीच सेफ्टी, 8 मिनट मतलब हम देख सकते हैं रिकॉर्ड शो दे हैड प्रीसियसली 8 मिनट्स टू रीच सेफ्टी। फॉर 2:54 p.m. द ग्रेट वेव केम रोलिंग इन द डिस्ट्रॉइंग ऑल इन दिस वन। और जैसे ही वहाँ पर मतलब हम जो हमारे पहले हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ पहुँचे तो एक बहुत बड़ी वेव आई घूमती हुई और उसने क्या किया, डिस्ट्रॉ कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, उस रास्ते को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। दैट्स ऑल टुडे, दैन वी कंटिन्यू सेक्शन 2 इन आवर सेकेंड क्लास। ओके, दैट टाइम प्लीज़ बच्चों स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइन। बाय बाय, थैंक यू।